روایات میں اندر آتا ہے کہ 40 مسلمان حضرت عمر بن خطاب تھے، 39 لوگ اس وقت تک مرد اور عورتیں دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، 40واں مسلمان عمر بن خطاب تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ چونکہ ایک بہادر شخصیت تھے اور حق پر ڈٹنے والے تھے، جب آپ اسلام لا چکے اس وقت تک مسلمان ایک گھر کے اندر چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، علیہ اعلان نہ مسلمان عبادت کیا کرتے تھے نہ ہی دین اسلام کی تبلیغ کر سکتے تھے، کیونکہ کفار کی اکثریت تھی، مکہ کی سرزمین تھی، ہر طرف سے کفار کی لہر تھی، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، مسلمان کھل کر تبلیغ نہیں کر سکتے تھے۔ اس موقع پر حضرت عمر اسلام لائے تو اسلام لانے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی اگر ہم حق پر ہیں تو آج کے بعد چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، اعلن اعلان عبادت ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر کعبۃ اللہ کے سین کے اندر چلے گئے اور پہلی جو باجماعت نماز مسلمانوں نے ادا کی وہ کعبۃ اللہ کے سین میں تھی، اور سین میں نماز ادا کر کے حضرت عمر نے کفار کو بتا دیا کہ آپ اسلام کی طرف میری آنکھ سے نہیں دیکھنا، اس لیے کہ عمر دین اسلام قبول کر چکا ہے، عمر دین اسلام قبول کر چکا ہے۔ اور پھر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے، مسلمانوں کو جب کفار نے تنگ کیا اور اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے جائیں، جب مسلمان مدینہ کی طرف جانے لگے تو سب نے چھپ کر ہجرت کی، حتیٰ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا اور ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور 3 دن غار کے اندر ٹھہرے رہے، پھر وہاں سے مدینہ گئے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب ہجرت کرنے لگے تو آپ نے فرمایا عمر مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہے، جس نے عمر کا راستہ روکنا ہو، جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہوں، جس نے اپنے گھر کے اندر بیوائیں رکھنی ہوں، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، وہ عمر کا راستہ روکنے کے لیے آگے آ جائے۔ کسی کے اندر جرأت نہ تھی کہ عمر کا راستہ روکے۔ حضرت عمر چلے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر نفل ادا کیے، پھر حضرت عمر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے اندر گئے۔ تو حضرت عمر کی وجہ سے جو رب تعالیٰ نے دین اسلام کو عزت عطا فرمائی اور تقویت عطا فرمائی، تقویت کسی اور کی وجہ سے نہیں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ دوم سیدنا صدیق اکبر کے بعد دوسرے خلیفہ بنے تو 10 سال کچھ ماہ کے عرصہ تک آپ حاکم وقت رہے۔ آپ کے عرصے کے اندر روایات میں آتا ہے کہ 3600 علاقے فتح ہوئے، 3600 علاقے، جن کے اندر کچھ ممالک بھی آتے ہیں، کچھ خطے بھی آتے ہیں، کچھ دیہات بھی آتے ہیں، 3600 روایات میں آتا ہے۔ اور حضرت عمر کے دور خلافت کے اندر 900 جامع مساجد بنی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جو غیر جامع مسجد تھی وہ 4000 مسجدیں بنی جو غیر جامع تھی، اور جامع مسجدیں جو تھی وہ 900 مساجد حضرت عمر کے دور خلافت کے اندر بنی، اور 24 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر نے حکومت کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے، ایک مقام پر پہنچے، بیٹھ کر رونا شروع ہو گئے۔ ساتھیوں نے وجہ پوچھی کہ عمر کیا وجہ ہے کہ اس جگہ پر بیٹھ کر رونا شروع ہو گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ماضی کی یاد آ گئی کہ ماضی کے اندر یہی جگہ تھی جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میرے والد خطاب نے مجھے کچھ اونٹ چرانے کے لیے دیے، میں ان اونٹوں کو یہاں پر لے کر آیا، بیچ میں سے ایک اونٹ مجھ سے گم ہو گیا، میرے والد مجھ پر غصے ہوئے اور مجھ سے ناراض ہوئے، کیا عمر تم سے چند اونٹ نہیں سنبھالے جاتے؟ حضرت عمر کہنے لگے ایک وقت تھا جب مجھ سے چند اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، آج اللہ کے حکم سے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی نسبت سے
عمر 24 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है और मजाल है कि मेरी हाकिमियत के अंदर कोई बंदा भूखा सो जाए या उमर को अल्लाह के अलावा किसी और का डर हो। आज वो वक्त है और एक वो वक्त था जब उमर से जब ऊँट नहीं संभाले जाते थे। उस चीज को जब उस बात को जब मैंने याद किया तो मुझे रोना आ गया। अब इस प्रकार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी वजह से अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को तक़वियत दी। और हज़रत उमर ऐसी शख्सियत थी कि जिनके न सिर्फ अपने चाहने वाले मुतारिफ थे जिनकी इज्जत थी, बल्कि गैर मुस्लिम भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इज्जत और शोहरत और आपकी शख्सियत के मुतारिफ थे। अंग्रेज आज भी कहता है कि अगर उमर जैसे एक और हाकिम वक्त अगर 10 साल हुकूमत कर जाता तो पूरी ज़मीन पर दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन न बचता, हर तरफ दीन इस्लाम ही होता। अगर एक और 10 साल उमर बिन खत्ताब हुकूमत कर जाते तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने अपने 10 साल दौर हुकूमत के अंदर 24 लाख मुरब्बा मील तक मुसलमानों और इस्लाम का झंडा गाड़ा और इस्लामी फतुहात की। और फिर आपके दौर खिलाफत के अंदर जितनी भी जदीद इस्लाहात थी, मसलन फौज के लिए आपने छावनियाँ कायम की, पुलिस का महकमा कायम किया, जेलें तामीर की और सफ़र पर मुसलमान जब रवाना होते थे तो रास्ते के अंदर सराय महल वो तैयार किए। और इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदालत का निज़ाम कायम किया। हज़रत उमर की एक सिर्फ अदल की थी कि अदल हज़रत उमर से बढ़कर कोई और न कर सका। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किया और हुजूर के बाद अगर सबसे बढ़कर सहाबा इकराम के अंदर किसी ने अदल किया तो वो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आपने अदालतें कायम की और ऐसा नहीं था कि एक अदालत बना दी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, बल्कि हर अदालत पर एक काजी मुकर्रर था और उस काजी से भी फिर बाज पुरस होती थी कि तूने फलां फैसला किस रूह से किया है, दीन इस्लाम के तरीके से किया है या दीन इस्लाम से हट कर किया है। चेक एंड बैलेंस का निज़ाम चाहे अदालतों के अंदर हो चाहे बाजारों के अंदर हो, हज़रत उमर से बढ़कर कोई न कर सका। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार के अंदर अपना वो असाए फारूकी जिसे कहा जाता है वो साथ लेकर बाजार के अंदर जाते और जाकर चेक करते कि फलां ताजर फलां चीज किस रेट पर बेच रहा है। आज मनमानियां शुरू हुई बाजार के अंदर, हर बंदा उसने अपना एक महकमा कायम किया हुआ है। वो कहता है जी देखें ऊपर महंगाई हो गई है, पेट्रोल बढ़ गया। अब कई चीजें ऐसी हैं जिनका पेट्रोल के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी दुकानदारों ने मनमानियां शुरू कर दी है। क्या बात है जी, क्यों चीज महंगी हो गई है जी, महंगाई हो गई है जी, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, तेल बढ़ गया। हालांकि हर चीज डीजल पेट्रोल पर नहीं है, चेक एंड बैलेंस का निजाम ही नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, अगर है भी तो वो ना होने के बराबर। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने खुद आखिरी वक्त और रात को हज़रत उमर की शान ये थी कि गलियों के अंदर बेस बदल कर, किसी शायर ने क्या खूब कहा कि मोहम्मद के सहाबी का वो शाना याद आता है, बदल कर बेस तो गलियों में जाना याद आता है। और नजफ इस अहद की मैं जब तरसती है आटे को, उमर तेरी खिलाफत का वो ज़माना याद आता है। आज मैं आटे को तरस रही है, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को बेस बदल कर गलियों का चक्कर लगाते। एक रिवायत में आता है कि हज़रत उमर एक घर के पास से गुजरे, बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही, दरवाज़ा खटकाया, पूछा क्या वजह, बच्चे क्यों रो रहे? फरमाया भूख की वजह से। पूछा हंडिया के अंदर क्या चढ़ाया हुआ? कहा हंडिया के अंदर पानी और कंकर पत्थर डाले ताकि बच्चे चुप होकर सो ले। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ गुलाम भी था। आप वहां से उठे, बैतुल माल आए, वहां से घी लिया, आटे की बोरी अपने कंधे पर उठाई। जो साथ खादम था उसने कहा हजरत मुझे दे, मैं उठाता हूँ। फरमाया क्या कल कयामत के दिन तू ये मेरा बोझ उठा लेगा? फरमाया अगर कयामत के दिन मेरा बोझ नहीं उठा सकता तो आज उमर को मेरा बोझ खुद उठाने दे। हजरत उमर जाते हैं, उसके घर के अंदर आटा कूदा जाता है। रिवायात में आते हैं कि हजरत उमर उस चूल्हे के अंदर खुद फूंके मार रहे हैं और आग जला रहे हैं। खादम कहता है कि मैंने देखा हजरत उमर की दाढ़ी से धुआं निकल रहा है।
हाकिम वक्त 24 लाख मुरब्बा मील का हाकिम वक्त एक बूढ़ी हमारी के अंदर बच्चों के लिए खाना तैयार कर रहा है। आज हमारे हाकिमों के प्रोटोकॉल आप देखें कि 10-10 20-20 गाड़ियां और मुल्क कर्जे के बोझ तले दबा जा रहे हैं। सिर्फ अगर हाकिमों के हमारे जो प्रोटोकॉल हैं और उनके जो खाने और उनकी अयाशियां हैं वही खत्म हो जाए तो मुल्क का कर्जा आसानी के साथ उतर सकता है। हज़रत उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं अपनी बात को खत्म करने लगा हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुदा खौफी का आलम देखें, फरमाते हैं कि अगर दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो कल क़यामत के दिन उमर से पूछा जाएगा। कल क़यामत के दिन उमर से उस कुत्ते का हिसाब लिया जाएगा कि ऐसी हुकूमत और ऐसी मुमलिकत जिसके अंदर बंदा हुकूमत करे और कोई भूखा सोए, उससे बेहतर है कि बंदा हुकूमत करना छोड़ दे। तो फरमाते हैं कुत्ता अगर भूखा मर गया तो कल क़यामत के दिन उमर से पूछा जाएगा कि कुत्ता क्यों मरा है। और फिर अदल इंसाफ का आलम यह है कि मदीना की सरजमीन पर ज़लज़ला आता है। हज़रत उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने वो दुर्रा जमीन पर मारते हैं और फरमाते हैं मदीना की सरजमीन तो क्यों कांप रही है, क्या तुझ पर उमर इंसाफ नहीं कर रहा? अगर उमर इंसाफ न कर रहा हो तब तू हिले, अगर उमर इंसाफ कर रहा है तो फिर तेरा काम जमीन का कब हिलना नहीं बनता। वो दिन और आज का दिन मदीने की सरजमीन पर ज़लज़ला नहीं आया। ये हज़रत उमर थे। और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा कि हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मिस्र के गवर्नर बने और मिस्र के अंदर दरियाए नील बहता है, वो हर साल खुश्क हो जाया करता था। दरियाए नील हर साल खुश्क हो जाता। अब चलता कैसे था, उसके अंदर रवानी कैसे आती थी? एक नौजवान लड़की को, दोशीज़ा को बना सवार कर उस दरिया के अंदर डाला जाता, वो दरिया चल पड़ता। हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने हज़रत उमर को खुद एक खत लिखा और सारा माजरा बयान किया कि मिस्र के अंदर तो मुझे आपने हाकिम मुकर्रर किया है, लेकिन यहाँ पर दरियाए नील की हालत किया कि हर साल खुश्क हो जाता है। हज़रत उमर ने दरियाए नील के नाम एक रुका लिखा और फरमाया दरियाए नील अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो तू ना बह, तेरे बहने की हमें जरूरत नहीं, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो आज के बाद तुम्हें खुश्क नहीं होना है। वो रुका हज़रत उमर ने उस कासत को दिया, फरमाया दरियाए नील के अंदर डाल देना। वो रुका जाकर हज़रत उमर का जब दरियाए नील के अंदर डाला गया तो वो दिन और आज का दिन दरियाए नील आज तक खुश्क नहीं हुआ। कि रुका था हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि जिनके दौरे हुकूमत के अंदर दरिया भी और नहर भी जिनका हुक्म माना करती थी, लेकिन शर्त ये थी कि ऊपर जो हाकिम था वो आदिल और मुनसिफ और इंसाफ करने वाला था। आज भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर भी कोई हज़रत उमर जैसा जरी इंसान, गैरतमंद इंसान और इंसाफ करने वाला इंसान अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। उसकी बारगाह के अंदर कमी नहीं, अगरचे ऐसा हुक्मरान नहीं मिल सकता लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलने वाला हाकिम जरूर मिल सकता है। दुआ गो कि खल्लाक़ के आलम हमें सीरत उमर बिन खत्ताब पर अमल करा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।